तो चुनाव पर सबसे सार्थक शो ये मुद्दा क्यों नहीं में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम चुनाव के असल मुद्दों को आगे लाने की कोशिश है। आज बात ऐसे मुद्दे की करेंगे जिसका सीधा आपसे सरोकार हो, लेकिन उससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती क्या कुछ कह रही हैं आपको दिखाते हैं। जनसेना पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीఐ, सीपीएम ఈ కలయిక ఎన్నికలకు కలిసి వెళ్ళడం అనేది ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం. రాజకీయంగా సామాజికంగా కూడా మన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎంతో అవసరమని భావించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా ఈ అలయన్స్ని ఇంకా జాగ్రత్తగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అందులో భాగంగానే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి భావజాలం, కాంశీరామ్ గారి భావజాలం కేవలం ఉపన్యాసాలకే పరిమితం అవ్వకుండా వాస్తవంగా పార్టీలో మేము చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఆ భావజాలాన్ని గౌరవించి అన్ని సందర్భాల్లో కూడా ప్రజలకి మేలు చేసే విధంగా జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు కూడా సమాజానికి నిలబడుతుంది. మాయావతి గారితో మేము కలిసినప్పుడు కూడా కులాలను మతాలను కలిపే పార్టీ జనసేన పార్టీ. అందుకు ఈ కలయిక ఒక నిదర్శనం. దయచేసి మీరందరూ కూడా కొంచెం సహకరించాలి. ఈ మీడియా మీట్ ద ప్రెస్ కార్యక్రమంలో కొన్ని ప్రశ్నలు సోదరుల దగ్గర తీసుకున్నాను. అవన్నీ కూడా నేను మాయావతి గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. ఈరోజు రేపు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మాయావతి గారు విజయవాడ, తిరుపతి, హైదరాబాద్ ఈ 3 ప్రాంతాల్లో బహిరంగ సభల్లో పాల్గొనబోతున్నారు. ముందుగా విశాఖపట్నంలో మనకి ఈ అవకాశం దొరికింది. సో దయచేసి మీరందరూ కూడా గౌరవించి కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళగలుగుతామని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడడం కోరుతున్నాను. बहन जी मायावती जी को मैं प्रणाम करता हूँ. इక్కడికి వచ్చిన పాత్రికేయ సోదరులందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. బీఎస్పీ నాయకులు మిశ్రా గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. ఐ wholeheartedly welcome Kumari Bahan ji, Mayawati ji on behalf of people of Telangana and Andhra Pradesh. It's a great movement in AP and Telangana political landscape, aligning with getting the grace from Bahan ji, Mayawati ji. This association actually started, it was initiated a decade back, 10 years back. నాకు చాలా దళిత ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన సన్నిహితులు, మేధావులు గత దశాబ్దం నుంచి నాతో చాలా సాన్నిహిత్యం ఉన్నవాళ్ళు 2008 నుంచి నన్ను బహుజన్ సమాజ్ పార్టీకి మీరు కలిసి రావాలని చెప్పి చాలా రకాల ఆహ్వానాలు అందినాయి. అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాను. కానీ ఆ సాన్నిహిత్యం రకరకాల మేధావులతోటి, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మేధావులతోటి, వీళ్ళందరితోటి కలవడం జరిగింది. అది ఈ రోజున 2019లో చాలామంది సన్నిహితులు, మేధావులు అందరూ కలిసి జనసేన బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కలవాలి అనేది ప్రత్యేకంగా మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు. चलिए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हमारी खास पेशकश जो चुनाव से सीधे जुड़ी है, आपसे सीधे जुड़ी है। ये मुद्दा क्यों नहीं कि ये कार्यक्रम चुनाव के असल मुद्दों को आगे लाने की कोशिश है। और आज बात ऐसे मुद्दे की जिसका जिक्र शायद ही कोई नेता करता। वो बात मुल्क की सड़कों के गड्ढों की कर रहे हैं। देश की कई सड़कों की हालत कुछ ऐसी नजर आती है जहां पर सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं। आप कार बाइक खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, अच्छी सड़कों से गुजरते हैं तो भी टैक्स देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में एक साल में करीब 3600 जानें जाती हैं, औसतन हर दिन 10 मौत होती हैं सिर्फ
सड़क के गड्ढों की वजह से। वो गड्ढे जिनसे देश को करीब 1,82,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कई राज्यों के सालाना बजट से कहीं ज्यादा। हर साल आतंकवाद और नक्सलवाद से कहीं ज्यादा मौतें सिर्फ सड़क के गड्ढों की वजह से होती हैं। फिर भी आखिर क्यों सड़क के गड्ढों की वजह से मौतें चुनावी मुद्दा नहीं बन पाती? जयपुर की मृदुला और सड़क के गड्ढों के बीच एक रिश्ता है। मृदुला बताएंगी कि सड़क के गड्ढों ने कैसे उनकी बेटी दूर्वा की जान ले ली। दूर्वा की तरह सड़क के गड्ढों से हर साल देश में 3600 लोगों की मौत हो जाती है। ये भयानक त्रासदी है, मगर ये मुद्दा क्यों नहीं? ये मुंबई के दादाराव बिल्होरे हैं। सड़क के गड्ढों ने दादाराव से उनका जवान बेटा छीन लिया। सड़क के गड्ढों से सिर्फ हादसे नहीं होते, सड़क के गड्ढों और खराब सड़कों से देश में हर साल 1,43,000 करोड़ का नुकसान होता है। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं? बेंगलुरु के पीटर सैमसन और सड़क के गड्ढों का गहरा नाता है। सड़क के गड्ढों में पीटर की स्कूटर ऐसी समाई थी कि वो महीनों अस्पताल के बेड पर रहे। पीटर की तरह हर साल देश में 9,000 लोग सड़क के गड्ढों की वजह से घायल हो जाते हैं। सड़क के गड्ढे हर रोज 25 लोगों को अस्पताल पहुंचा देते हैं, मगर ये मुद्दा क्यों नहीं? गुरुग्राम के मनोज वाधवा ने सड़क के ऐसे ही गड्ढों में अपने 3 साल के मासूम बेटे को खो दिया। मनोज के बेटे की तरह देश में रोज सड़क के गड्ढों की वजह से 10 लोग जान गंवा देते हैं। सड़क के गड्ढे मौत की वजह बन रहे हैं, फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? सड़क के गड्ढे और खराब सड़कों के चलते हर साल देश की जीडीपी का 3% नुकसान होता है। यानी हर साल देश के करीब 1,43,000 करोड़ रुपए खराब सड़कों के चलते बर्बाद हो जाते हैं। पैसों की बर्बादी का ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे हर साल देश में 90 एम्स खुल सकते हैं, 18,000 किलोमीटर के 2 लेन वाले हाईवे बन सकते हैं, 8,000 सेंट्रल स्कूल खुल सकते हैं, 290 स्टेडियम बन सकते हैं। व्यवस्था का तो सीधा सीधा नुकसान है ही। इसकी भरपाई के लिए एक अच्छा खासा सरमाया हमारा खर्च होता है, हमारी रकम लगती है। और ये आरआर कटिंग वगैरह बार बार जो होती है विभिन्न चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कभी ये जल बोर्ड वाली लाइन के लिए आरआर कटिंग होती है, तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा बजट जो है वो सर्फ होता है। हर साल देश में आतंकी और नक्सली हमले से ज्यादा लोग सड़क हादसों की वजह से मारे जाते हैं। हर एक घंटे में औसतन एक हादसा सड़क के गड्ढे की वजह से होता है। फिर भी वो किसी पार्टी या नेता के लिए मुद्दा क्यों नहीं? पिछले 3 साल में गड्ढों की वजह से 25,000 से ज्यादा हादसे हुए। इनकी वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10,000 के करीब है। 2015 में सड़क हादसे में 3,415 लोगों की जान गई, जबकि नक्सली हमले में 230 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आतंकी हमले में 326 लोग मारे गए। 2016 में सड़क हादसे में 2,324 लोग मारे गए, जबकि नक्सली हमले में 278 लोगों की जान गई। वहीं आतंकी हमले में उस साल 380 लोग मारे गए। 2017 में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 3,597 रही, जबकि नक्सली हमले में 263 लोग और आतंकी हमले में 376 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश का आम आदमी टैक्स भरता है। भीख मांगकर पैसा जमा करने वाला शख्स भी खाने से लेकर जरूरी सेवाओं तक में किसी न किसी तरीके से सरकार को टैक्स अदा करता है, लेकिन उसे अच्छी और सुरक्षित सड़क तक नहीं मिलती। फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? तो टैक्स जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, गरीब से लेकर अमीर तक टैक्स लग रहा है। ये लोग हम लोग को बेसिक इम्यूनिटीज नहीं दिए। जैसे ही कोई शख्स गाड़ी खरीदता है, उस पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। गाड़ी चलाने के लिए जब वो तेल भरवाता है, तब भी वो सरकार को पैसे चुकाता है। सड़क पर टोल जैसे जरूरी टैक्स भी वो चुकाता है। आम आदमी के टैक्स का हिस्सा सड़क बनाने पर भी खर्च होता है। सड़क की मरम्मत करने वाले पर भी आम आदमी की कमाई के पैसे खर्च होते हैं। सड़क की हालत की निगरानी करने वालों पर टैक्स का हिस्सा जाता है, मगर बदले में देश के एक आम आदमी को क्या मिलता है? सड़क के गड्ढे और गड्ढे की वजह से हादसे और मौत। ये आम आदमी की कमाई और उसकी जान दोनों से जुड़ा मुद्दा है। फिर भी चुनावों में ये मुद्दा क्यों नहीं? चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विशाखापट्टनम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं, दिखाते हैं आपको। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीएसपी की तरफ से। दक्षिण में किस तरीके से बीएसपी की राजनीतिक तस्वीर बेहतर हो सकती है, मजबूत हो सकती है, इस लिहाज से एक अहम गठबंधन, क्या कुछ कह रही है मायावती, दिखाते हैं आपको।
जब ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तो यहाँ पर आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पावर में रही, लेकिन कांग्रेस ने ये पूरे आंध्र प्रदेश का ठीक ढंग से इसका विकास नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया और तेलंगाना जो क्षेत्र है उसकी उपेक्षा की, जिसकी वजह से वहां के लोगों की ये डिमांड रही कि उनका अलग। चलिए, तो आप सुन रहे थे विशाखापट्टनम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के। एक बार फिर रुख करते हैं अपने खास पेशकश ये मुद्दा क्यों नहीं की, और अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। वो मुंबई जो कभी ठहरती नहीं, वो मुंबई जिसने साल 2015-16 में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया, मुल्क में सबसे ज्यादा। वो मुंबई जहां सड़कों के घनत्व के हिसाब से कारों का जाल दिल्ली से भी 5 गुना ज्यादा है। उसी मुंबई में साल 2017 में सड़क हादसों में 3160 लोगों की जानें गई। हादसों की बड़ी वजह सड़कों के गड्ढे भी हैं, लेकिन हैरानी इस बात की कि बीएमसी मुंबई में सिर्फ 300 गड्ढों का दावा करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मुंबई में 4000 गड्ढों की बात सामने आई है। जाहिर है सवाल सरकारी एजेंसियों की नीयत पर भी है। मुंबई की सड़कों पर गड्ढे भरते इन बुजुर्ग को देखिए। इनका नाम दादाराव बिल्होरे है। ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, न इनकी कोई जवाबदेही है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे ही एक गड्ढे में अपने जवान बेटे को खोया है। 28 जुलाई 2015 का वो दिन मुंबई में रहने वाले दादाराव बिल्होरे के लिए बेहद मनहूस दिन था, क्योंकि मुंबई के एक गड्ढे ने उनके 16 साल के बेटे की जान ले ली। और तब से ही यानी करीब 3 साल से दादाराव बिल्होरे जब मुंबई में किसी गड्ढे को देखते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते और खुद ही उस गड्ढे को भरने में लग जाते हैं। 3-4 फुट के जो गड्ढे होते हैं बहुत गहरे होते हैं, जिसमें हादसे होते हैं। ये गड्ढे भरने के लिए हम सब लोगों ने तय किया है कि ये गड्ढे हम भर के रहेंगे और आने वाले समय में कई लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। कोर्ट के भी निर्णय दिया है कि गड्ढों की वजह से अगर जाने चाहिए तो इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो एजेंसी है, उनके ऊपर ये मुकदमा दायर होना चाहिए कि 302 अ के तहत उनके ऊपर कलम चलाकर उनके ऊपर गुन्हा का मुकदमा जो होना जरूरी है। दादाराव के बेटे की तरह देश में हर रोज सड़क के गड्ढे से 3600 लोगों की मौत हो जाती है, यानी सड़क के गड्ढों की वजह से रोज 10 लोगों की मौत और हर 2.5 घंटे में एक शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा क्यों नहीं? जिस मुंबई का नाम देश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले शहरों में आता है, देश की उस आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों में गड्ढों की भरमार है। सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि रफ्तार ही नहीं, जिंदगी पर भी ब्रेक लगाते हैं। 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई के लोगों ने करीब 2 करोड़ 48 लाख का टैक्स चुकाया, जबकि 2017 में मुंबई में सड़क हादसे में 3160 लोगों की मौत हो गई। बीएमसी मुंबई में सिर्फ 300 गड्ढे का दावा करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में मुंबई में 4000 गड्ढों की बात सामने आई। मगर अफसोस ये भी किसी पार्टी या नेता के लिए मुद्दा नहीं। सब बाइक एक्सीडेंट वाले विक्टिम जो होते हैं वो नॉर्मली यंग आते हैं और उनमें हेड इंजरी ज़्यादा होती है। पिलियन राइडर है या बाइक राइडर है, उसको पॉटहोल देख के या रास्ते पे ध्यान दे के चलने की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। मुंबई देश का सबसे व्यस्त शहर है। दिन रात यहाँ बाइक कार दौड़ती रहती हैं। सड़कों के घनत्व के अनुपात में बात करें तो मुंबई में कार का जाल दिल्ली से 5 गुना ज्यादा फैला है। मुंबई में हर 1 किलोमीटर पर औसतन 510 कार है, जबकि दिल्ली में हर 1 किलोमीटर पर औसतन 108 कार और पुणे में हर किलोमीटर पर 359 कार। सबसे ज्यादा कार और भारी आबादी के बावजूद न मुंबई की सड़कें ठीक होती और न सड़क के गड्ढे। घर से आदमी जब निकलता है तो वो गड्ढे में जाने के लिए नहीं निकलता, उसको जाना पड़ता है, और जब जाता है तो बाइक से वो ऑफ बैलेंस हो जाता है, ट्रक्स उसको लगती है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए डेफिनेटली द बीएमसी इज़ रिस्पॉन्सिबल। और पुलिस और बीएमसी अपने आप में काम करते हैं। एफआईआर नहीं लेंगे, सेक्शंस नहीं इन्वोक करेंगे, बाद में आइए कहेंगे, क्योंकि उनको तो एक फ़ोन आ जाता है, उनका फॉल्ट नहीं है। बट डीसीपी एसीपी लेवल पे ये काम होता रहता है। 2018 के एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई में 1941 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं,
जिनमें से 1200 किलोमीटर की सड़कें बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन सड़कों की मरम्मत के लिए बीएमसी ने साल भर में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़कों में हुए गड्ढे भरने के लिए ही उसने 28 करोड़ रुपए खर्च किए। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद मुंबई की सड़कें इतनी खस्ता हाल क्यों हैं? और हादसे और जाम बढ़ाते सड़क के गड्ढे किसी पार्टी या नेता के मैनिफेस्टो का मुद्दा क्यों नहीं? मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आज हम बात कर रहे हैं सड़क के गड्ढों की। 18 से 34 साल की उम्र के लोग सड़क हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सोचिए, किसी घर का इकलौता कमाई करने वाला शख्स अगर सड़क के गड्ढे की वजह से मौत का शिकार हो जाता है तो उस परिवार का क्या हाल होता होगा। फिर भी किसी पार्टी या नेता के लिए सड़क का गड्ढा मुद्दा नहीं। जयपुर की मृदुला को सड़क के गड्ढों ने कभी न मिट पाने वाला गम दिया है। सड़क के गड्ढों ने मृदुला से उनकी बेटी छीन ली। 18 साल पहले हुए उस हादसे को याद कर मृदुला की आंखें नम हो जाती हैं। आज 18 साल हो गए, 17 साल हो चुके हैं। हम इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई ऐसे मुद्दे जो जाति से रिलेटेड होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, वो बड़े लोगों को उत्तेजित करते हैं। उन चीज़ों को राजनीतिक रूप से मंच पर बहुत डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये मुद्दे जो बड़े मानवीय मुद्दे हैं, इनको बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। हर साल देश में करीब 1.5 लाख लोग इसी तरह सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और मृदुला की तरह लाखों माँ आंसुओं और दर्द में डूब जाती हैं। मगर फिर भी ये कोई मुद्दा क्यों नहीं? अकेले राजस्थान में 2017 में सड़क हादसे में कुल 10,444 मौतें हुई, जबकि 22,071 लोग घायल हुए। वहीं 2018 में राजस्थान में सड़क हादसे में 10,330 लोगों की मौत हुई और 21,547 लोग सड़क हादसों में घायल हुए। बेंगलुरु के पीटर सैमसन को भी सड़क के गड्ढों ने गहरे जख्म दिए हैं। पीटर का स्कूटर पिछले साल पॉट होल में गिरा और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। महीनों इलाज के बाद पीटर ठीक हुए तो उन्होंने मुहिम छेड़ दी, सड़क के गड्ढे भरने और खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत के लिए अभियान छेड़ने की। हम लोग सिटीजन को क्या चाहिए? बेसिक इंडिया चाहिए। बेसिक इंडिया क्या होता है? गुड रोड्स होता है, पॉट होल फ्री रोड्स होता है, करप्शन फ्री चाहिए हम लोग को, फुटपाथ, अच्छे फुटपाथ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन। मैंने मैनिफेस्टो में ये सब कहीं नहीं देखा आज तक। हम लोग थ्रू आउट ईयर अभियान करते हैं पॉट होल्स के बारे में और फुटपाथ के बारे में। दो चीज़ बहुत डेंजर होती है, एक पेडेस्ट्रियन वॉक और एक राइडिंग के लिए फुटपाथ पॉट होल्स बहुत डेंजर होते हैं। बेंगलुरु IT सिटी के रूप में देश भर में मशहूर है। इसे स्टार्टअप कैपिटल भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी में रोजगार शुरू करने के मामले में बेंगलुरु देश में ही नहीं एशिया में पहले नंबर पर है। बेंगलुरु में करीब 35,000 IT कंपनियां हैं, लेकिन शहर के गड्ढे न केवल इसकी छवि धूमिल करते हैं, बल्कि शहर में बढ़ते रोजगार और विकास की गति को भी धीमा कर रहे हैं। फिर भी ये मुद्दा क्यों नहीं? गड्ढों की वजह से एक तो हमारी जो ख्याति विदेशों के अंदर एक उन्नत राष्ट्र के रूप में होनी चाहिए, उसे कहीं ना कहीं ये गड्ढा धूमिल करता है। सड़क हादसों को रोकने के लिए काम कर रही संस्थाओं का भी मानना है कि सरकार से लेकर सड़क निर्माण में लगे इंजीनियर की उदासीनता सड़क में हो रहे गड्ढों की बड़ी वजह है, लेकिन ये मुद्दा नहीं। कुछ सर्विस करना नहीं है और IRC स्टैंडर्ड्स जो है, इंडियन रोड कांग्रेस का जो स्टैंडर्ड्स जो है, जो रास्ता जो आर्टेरियल रोड्स किस तरीके में बनाना चाहिए, इनसाइड CBD एरिया किस तरीके में बनना का